honorable chief guest, Professor Rajiv Tripathi sir, Director, MNNIT Allahabad. Guest of honor, Profesor orang pagi. Setengah pagi. our chief guest, Professor Rajiv Tripathi sir, Director, MNNIT Allahabad. I introduce you to the esteemed Professor Rajiv Tripathi sir, eminently known for his diligence and ability. More than 140 papers in international journals and conferences of repute. He has supervised many PhD students till date. He has worked closely. His innovative dogma has rewarded him with innumerable awards and honors. We are immensely gratified to have him as the guest of honor to this inaugural function and look forward to the treasured experience he has to share with us. So first I want to especially welcome Professor Rajiv Tripathi because under his leadership and guidance we are organizing all roughly around $500 to $1,000 also. They also provide opportunity to participate in online competitions. So if you go to the IEEE website, you will learn that more than what you actually know about IEEE, that kind of activities they are taking place. But who is the leader, torch bearer of this IEEE society? Students, youngsters, they are. Professor Srivastava was mentioning about the formation of the department. This is the department which has got academically vibrant research groups in the area of signal processing, in the area of wireless mobile communication, in the area of medical imaging, image processing, VLSI. All these are the research groups which are quite vibrant in research activities, in conducting the workshops, in conducting the seminars, symposiums, participating there. And I congratulate the department, I congratulate the organizers of this workshop from my own department who have made all their efforts to organize such a workshop in a short period of time. And I am confident that the academic vibrancy of this department, in turn, they will gain something from here and they will further disseminate this information in the form of interaction in their respective organizations. One of the important things of such workshops is interaction. So I will request all the participants jointly organize this workshop. In this workshop, we will basically discuss hands-on IoT, software-defined radio and software-defined networks, IoT-based experiments using vector network analyzer, spectrum analyzer, and different modern equipments, microstrip patch antenna design specifically using HFSS, fabrication of antenna suitable for advanced wireless networks, and testing of antenna, of course, signal processing using MATLAB, and many more aspects which are related to IoT and 5G. The resource persons are taken from IITs, NITs, and various industries using, including ANSYS, CEL, Agilent, Keysight, and IBM. Please let me invite Mr.
Arun Prakash to welcome our Honorable Chief Guest, respected guest of honor, Head of Department Electronics and Communication Engineering Department, Deans and Heads of the other departments, faculty members, distinguished guests, media persons, and dear participants. It is my honor to privilege to get an opportunity to propose a vote of thanks on this auspicious occasion. On behalf of Electronics and Communication Engineering Department, IEEE Student Branch of MNIT Allahabad, and on my own behalf, I convey extreme gratefulness to our director, Professor Rajit Tripathi sir, who despite of very busy schedule has given his valuable time for the workshop and has been the constant source of motivation for all of us. Further, we extend our deep regards and hearty thanks to Professor N.P. Pathak sir from IIT Roorkee for gracing the inaugural ceremony. We are greatly encouraged by his gracious presence and benefited by अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। The aim of education is the knowledge, not of facts. 2 मिनट रुकना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया की जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पर फोकस करके रिसर्च क्या हो रही है उन एडवांस एरियाज़ में, इससे प्रतिभागियों को अवगत कराना है। और दूसरा उद्देश्य है प्रतिभागियों में भी आपस में डिस्कशन इंटरेक्शन करना है, जिससे कि आगे की रिसर्च दिशा में उनको फ़ायदा हो। और हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, उनसे उनका एक्सपोजर हो, उनका गाइडेंस हो, ये इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। प्रौद्योगिकी संस्थान का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसको आयोजित कर रहा है और इस वर्कशॉप का थीम है एंटीना डिज़ाइन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स फॉर 5G नेटवर्क्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि 27 फरवरी से 4 मार्च तक एक हफ्ते का ये कार्यशाला हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यशाला में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के फैकल्टी मेंबर्स, PhD स्टूडेंट्स और M.Tech स्टूडेंट्स, वो सारे इसमें आके और इससे लाभान्वित हों, क्योंकि इसमें हमने जो स्पीकर्स हैं बहुत एमिनेंट स्पीकर्स इसमें हमने प्रयास किया है उनको ले आने का यहाँ इस कार्यशाला में। इसमें IITs के प्रोफेसर्स हैं, NITs के हैं, IIITs के हैं, ये सारे प्रोफेसर्स जो कि अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे व्याख्यान देंगे। और इसके अतिरिक्त हमने विभिन्न कंपनियों से जो कि इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जो कि इससे संबद्ध हैं इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड, वो सारे लोग आ करके प्रायोगिक सारे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अभ्यास कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, ताकि उन बच्चों को एक व्याख्यान के अलावा एक प्रैक्टिकल नॉलेज का भी उनको आइडिया हो। तो हमारी थीम पूरे एक हफ्ते का ये जो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, उसमें ये है कि ये बच्चे थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से लाभान्वित हों।
और इसमें हमने ये हमारा TCube2 स्पॉन्सर्ड कार्यशाला है। तो TCube2 मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है। इसके अतिरिक्त कुछ कंपनीज़ हैं, स्पेशली उसमें हम अगर नाम लें तो अनरित्सु, एंटेपल एंड कीसाइट एजिलेंट, ये 3 कंपनीज़ भी हैं जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। और जो कि मुझे शायद पहले बोलना चाहिए था, जो हम लोग की मुख्य बॉडी है IEEE, ये IEEE द्वारा भी स्पॉन्सर्ड है। और इस कार्यशाला में ये सारी चीज़ें करने के उपरांत और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये जितने भी बच्चे आ रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, बच्चे हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो इनको इतना नॉलेज मिले कि ये अपने यहाँ जब संस्थान में जाएं तो इन चीज़ों को प्रोपेगेट करें। तो मुख्य उद्देश्य जो इस कार्यशाला का है, चूँकि हम एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। ये वर्कशॉप एंटीना डिज़ाइन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स फॉर 5G एंड IoT सिस्टम्स के लिए है। 5G नेटवर्क्स जो है 4G नेटवर्क्स का एडवांस वर्जन है। हमारा अभी जो सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है वो 3G के बाद 4G आया हुआ है। 5G नेटवर्क्स इसके बाद आएंगे। हम लोग इस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है, तो उसके बारे में क्या क्या उसकी बेसिक टेक्निक्स हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को डिस्कस करेंगे, बताएंगे। इसमें IIT, IIIT और डिफरेंट कंपनीज से एक्सपर्ट्स आएंगे टॉक देने के लिए। लैब में भी डिस्कशन होगा और उनको मॉडर्न और एडवांस कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनसे परिचित कराया जाएगा। ये 27 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगा, 1 हफ्ते का वर्कशॉप है। और इसमें उम्मीद है कि उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, उनकी टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी अपग्रेड हो जाएगी। NIT कॉलेज में यहाँ पे 1 वीक का वर्कशॉप हो रहा है। इसमें हम एंटीना डिज़ाइन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स के बारे में बताएंगे और न्यू टेक्नोलॉजी अभी लॉन्च होने वाली है जिसे 5G बोलते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। और यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं, काफ़ी कॉलेजों से आए हुए हैं लोग, यहाँ सिक्किम से आए हुए हैं, BIT मिश्रा से आए हुए हैं, हर जगह से लोग आए हुए हैं, यहाँ तक कि NIT हमीरपुर आए हुए हैं। तो इसमें जो हमारा चीफ गेस्ट हैं वो प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी सर हैं। और जो है ये वर्कशॉप 27 फरवरी से 4 मार्च तक की चलेगी, जिसमें बच्चों को IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G पे पूरा ज्ञान दिया जाएगा। इसमें हैंडसेल्ड का भी प्रोग्राम किया गया है और इसमें 2 दिन का वर्कशॉप 2 दिन का पूरा लैब वर्क होगा और 4 दिन की पूरी वर्कशॉप ट्यूटोरियल वर्क होंगे।